Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandilwar and in today's lecture we will be studying increasing and decreasing topic from the chapter application of derivatives. But in today's lecture we will be doing only the theory part. In the next lecture we will be doing exercise part. So let us start. So first is strictly increasing function. A function f is said to be strictly increasing function on I is an interval, if x2 is greater than x1 implies f of x2 is greater than f of x1 for all x1 comma x2 belong to the same interval I. So it is the definition bacha. Function is said to be strictly increasing function if for x2 greater than x1 f of x2 should also be greater than f of x1, then we can say function is strictly increasing on I. So let us understand this definition using the diagram. So say we have a function like this, y is equal to f of x, and say we are having 2 points, x1 is somewhere here and x2 is somewhere here. So if x1 is here, I can say f of x1 will be here, and if x2 is here, I can say f of x2 will be here, right? So बच्चा say this is an interval I. तो इस I इंटरवल में जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है आप देख सकते हैं y भी इंक्रीज हो रहा है. y इज व्हाट, y कोऑर्डिनेट, दैट इज f of x1 f of x2, और जैसे जैसे आप x कोऑर्डिनेट लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको y कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. So here x2 is greater than x1 and you can see f of x2 is also greater than f of x1. So this is what strictly increasing function. Now start with the second function. Next is second strictly decreasing function. A function f is said to be strictly decreasing on I if x2 is greater than x1 implies f of x2 is less than f of x1 for all x1 x2 belongs to I. तो यहाँ क्या हो गया बच्चा, रिवर्स हो गया रिजल्ट. जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y कोऑर्डिनेट डिक्रीज होगा. x2 is greater than x1, f of x2 is less than f of x1, then the function is known as strictly decreasing function. डायग्राम देख लेते हैं. So ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया हमारा y एक्सिस. And consider we have a function like this, y is equal to f of x. तो बच्चा अगर यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट हमने ले लिया x1 और यहाँ कहीं पे कोई पॉइंट ले लिया x2, तो आप देख सकते हैं x1 का जो आउटपुट है f of x1 इज ग्रेटर देन द आउटपुट ऑफ x2 विच इज f of x2. तो जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है y पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट डिक्रीज हो रहा है, एंड दिस इज नोन एज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. नाउ द थर्ड इज ऑनली इंक्रीजिंग फंक्शन. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग में काफ़ी छोटा डिफरेंस है बच्चा, काफ़ी माइनर डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हम देख लेते हैं. थर्ड इज इंक्रीजिंग फंक्शन. A function f is said to be increasing function on I if x2 is greater than x1 implies f of x2 is greater than or equal to f of x1.
तो बच्चा x2 इज ग्रेटर देन x1 इम्प्लाइज f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1. सो व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे क्या है, इक्वल टू भी आ गया, बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल टू नहीं था, तो यहाँ पर इक्वल भी हो सकता है, एंड दिस इज नॉन एज इंक्रीजिंग. तो अगर इसका हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में क्या चेंजेस हैं, इंक्रीजिंग, बट हो सकता है ये इक्वल हो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए, एंड देन इंक्रीजिंग. ये डिक्रीज कहीं नहीं हुआ है बट कांस्टेंट हो गया है, पर्टिकुलर इंटरवल में कांस्टेंट हो गया, स्टेबल हो गया, एंड देन अगेन इंक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग तो है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, प्योर इंक्रीजिंग नहीं है, राइट बच्चा. सिमिलरली नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग फंक्शन. सो डिक्रीजिंग में भी क्या होगा बच्चा, इक्वल टू पार्ट भी आ जाएगा, प्योर डिक्रीजिंग नहीं होगा, यानी कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं होगा. सो डेफिनेशन देख लेते हैं. फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिक्रीजिंग फंक्शन इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 implies f of x2 is less than or equal to f of x1. तो यहाँ पे क्या हुआ, इक्वल टू पार्ट भी आ गया. तो अगर इक्वल टू पार्ट भी आ जाता है तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा, प्योर डिक्रीजिंग नहीं होगा. सो डायग्राम के अकॉर्डिंग decreasing, then equal, and then decreasing like this. So this is what decreasing function, not strictly decreasing function. Now fifth point is constant function. So fifth function is constant function. Now fifth point is constant function. सो कांस्टेंट फंक्शन बच्चा नेम से ही पता लग रहा है, कांस्टेंट. सो कांस्टेंट का डायग्राम आपको पता है, कांस्टेंट का डायग्राम कैसे होता है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट. सो लाइक दिस. सो दिस इज व्हाट कांस्टेंट फंक्शन. सो इन दिस फॉर एनी x y is equal to f of x will be having some constant value. Next is neither increasing nor decreasing. So neither increasing nor decreasing बच्चा, यानी कि जिसका बिहेवियर ओवरऑल सेम नहीं है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कंबाइन है. So if we see the diagram, so this is x-axis and this is y-axis. Diagram would be like this. So overall behavior same है, increasing भी है and decreasing भी है. So this is known as neither increasing nor decreasing. Right बच्चा? So ये तो हो गए functions, different kind of functions. But अभी हमें करना है कि अगर हमारे पास diagram नहीं है, we are having equation, then how we can identify whether the function is increasing or decreasing or constant. Right बच्चा? तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट है, एंड रिजल्ट जो है उसमें मीन वैल्यू थ्योरम का रोल है. सो बच्चा मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर 5 में एक टॉपिक है, बट वो अभी सीबीएसई के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो गया फॉर दिस ईयर. तो उसमें एक रिजल्ट है बच्चा, हम रिजल्ट देख लेते हैं डायरेक्ट. रिजल्ट सेज दैट एफ प्राइम एक्स, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, is equal to f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1. तो किसी भी फंक्शन के लिए इसमें कुछ कंडीशन है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. तो किसी भी फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, f of x2 माइनस f of x1 अपॉन x2 माइनस x1. अब इस मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट हम एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे यूज़ करेंगे, और वहाँ से हमें कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे जो हमें डायरेक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो बच्चे इस रिजल्ट को, अभी इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन पे, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पे. तो यहाँ आ जाता है बच्चा, और अभी हम इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं. तो जो हमारे पास ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या बोलता है, दैट f prime x is equal to f of x2 minus f of x1
upon x2 minus x1. Now see, for this function x2 is greater than x1. If x2 is greater than x1, can I say x2 minus x1 will be positive? अगर x2 x1 से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इनका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा. Now see the numerator part, f of x2 minus f of x1 and also f of x2 is greater than f of x1. तो ये भी हमारा पॉजिटिव आने वाला है. अब दोनों ही पॉजिटिव है तो इसका फ्रैक्शन भी क्या होगा? पॉजिटिव. सो आई कैन से कि f प्राइम x विल बी ग्रेटर देन 0. राइट, 0 से ज़्यादा. ये 0 भी नहीं हो सकता कोई भी क्योंकि ये इक्वल नहीं है. x2 is greater than x1, so their difference will be positive. f of x2 is greater than f of x1, so their difference will be positive. So this is the result for strictly increasing. यानी कि अगर फंक्शन strictly increasing है तो इसका जो डेरिवेटिव है वो इंटरवल पे i, जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं उस पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. राइट बच्चा. अब इंक्रीजिंग फंक्शन का देख लेते हैं. इंक्रीजिंग में f प्राइम x, यहाँ पे चेंज क्या है? x2 ग्रेटर देन x1. वो यहाँ पे जो था यहाँ पे भी x2 ग्रेटर देन x1 है, बट f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू f ऑफ x1. इक्वल भी आ गया है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट न्यूमरेटर या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव. तो इसलिए जो डेरिवेटिव की वैल्यू है वो क्या आएगी आपकी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. या तो 0 होगी या फिर 0 से ज़्यादा होगी. ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन का रिजल्ट बच्चा. अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए देख लेते हैं. So f prime x will be the same formula, f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1. तो जो यहाँ पे x2 minus x1 है बच्चा, फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार. So this is the formula. Now see the denominator x2 minus x1. So x2 is greater than x1. Again the denominator will be having positive value, but f of x2 is less than f of x1. जो f of x2 है वो f of x1 से छोटा है. So denominator की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव. नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, सो देयरफॉर डेरिवेटिव विल बी लेस देन 0. तो ये हो गया हमारा रिजल्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए. नाउ डिक्रीजिंग के लिए देख लेते हैं. डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा बच्चा? सेम फॉर्मूला. सो डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव बट न्यूमरेटर 0 और नेगेटिव. 0 और नेगेटिव, हैंस f प्राइम x विल बी लेस देन और इक्वल टू 0. सो डिक्रीजिंग में क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में लेस देन 0. सो बच्चा ये जो रिजल्ट्स आए हैं एक बार हम इनको लिख लेते हैं. हमारे पास अभी रिजल्ट्स आ गए हैं. सो नाउ वी आर हैविंग रिजल्ट्स एज रिजल्ट 1. सो रिजल्ट 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन i if f prime x is greater than 0 for all x belongs to I. Second, the function will be strictly decreasing on I if f prime x is less than 0 for all x belongs to I. Third result, increasing on I if f prime x is greater than or equal to 0 for all x belongs to I. Fourth is decreasing on I if f prime x is लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i. सो बच्चा आपको डिफरेंस पता लग गया होगा. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में इक्वल नहीं हो सकता 0, डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा. इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा डेरिवेटिव, एंड डिक्रीजिंग में लेस देन और इक्वल टू 0 होगा. ठीक है. तो बच्चा ये डेफिनेशन हो गई, ये रिजल्ट्स हो गए. अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. उससे पहले आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. से आई एम हैविंग अ फंक्शन बट वी विल बी हैविंग इक्वेशन. हमारे पास बच्चा कर्व का जो कर्व है उसका डायग्राम नहीं होगा, हमारे पास उसकी इक्वेशन होगी. बट मैंने मान लो डायग्राम बना दिया. ऐसे करके हमारे पास एक कर्व है और उसका डायग्राम ऐसे है और ये कर्व दिया है एंड क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. बट फंक्शन तो ओवरऑल इंक्रीजिंग नहीं है और ना ही ओवरऑल डिक्रीजिंग है, तो ये तो पार्ट हो गया नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का. ठीक है बच्चा. तो आपको क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन है आपको उसका डेरिवेटिव निकालना होता है. डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो यू कैन से फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. डेरिवेटिव नेगेटिव है तो यू कैन से फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. बट अगर ऐसा कुछ डेरिवेटिव आ गया जो हमें पता ही नहीं पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है. अब वो कैसे होगा एग्जाम्पल उसका मैं अभी देती हूँ, लेकिन उससे पहले कर्व देखो. इसमें अगर ये क्वेश्चन आ गया
इसकी इक्वेशन होगी, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चा ये जो है ओवरऑल इसका बिहेवियर सेम नहीं है, तो अगर हमें बताना है कि फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है तो हम क्या करेंगे ना, इंटरवल्स फाइंड करेंगे। जैसे ये एक इंटरवल है, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन ये एक इंटरवल है, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है, देन ये एक इंटरवल है, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है, तो हमें ये वाला इंटरवल आंसर करना है, ये वाला इंटरवल आंसर करना है और ये वाला इंटरवल आंसर करना है, एंड जो रिमेनिंग है वहाँ पे फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। तो जब ऐसा बिहेवियर आ जाए, दोनों बिहेवियर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है, इंटरवल्स निकालना होता है। अब इंटरवल्स के लिए हमें ये पॉइंट्स फाइंड आउट करने होते हैं। कौन से पॉइंट्स, जहाँ पर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है डिक्रीजिंग से इंक्रीज हो गया, यहाँ पे कर रहा है बिहेवियर चेंज इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग। तो ये पॉइंट्स हमें निकालने होते हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा, क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स को हम अच्छे से डिटेल में मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक में करेंगे। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। अब हमें करना क्या होता है बच्चा, ये पॉइंट्स निकालने होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स हमारी इंटरवल्स बनवाने में हेल्प करते हैं। तो अगर हमें ये पॉइंट्स मिल जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये जो इंटरवल्स निकल के आ रहे हैं, एटलीस्ट इन इंटरवल्स में फंक्शन का बिहेवियर सेम है। लाइक इस इंटरवल में ओवरऑल सेम है विच इज इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में ओवरऑल सेम है विच इज डिक्रीजिंग, एंड सो ऑन। तो अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होते हैं। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालेंगे बच्चा, देखो जो ये पॉइंट्स है ना, यहाँ पे अगर इसको दोबारा हम डायग्राम बनाएं तो ये कुछ ऐसे करके, अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ना बच्चा, इस क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हुआ है, ऐसे ऊपर गया एंड फिर नीचे आया। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो ये टॉप का पॉइंट है, यहाँ पे फंक्शन कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट हुआ है, एंड कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। तो ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, यहाँ पर जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। इसका डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, इसका एक और रीज़न है जो टेंजेंट नॉर्मल पे बेस्ड है, वहाँ पे भी हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव ये 0 क्यों है इन क्रिटिकल पॉइंट्स का। बट अभी के लिए ये कांस्टेंट है पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर पॉइंट्स इस छोटे से इंटरवल के लिए। तो ये यहाँ से हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव को 0 से वेट करके। तो यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, वो हमारे इंटरवल बनवाएंगे, और इंटरवल के बाद हमें बस ये चेक करना है कि डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि अगर साइन पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और अगर नेगेटिव हुआ या लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। राइट बच्चा, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी राइटिंग स्टेप्स फॉर सॉल्विंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चंस। ठीक है बच्चा, सो बच्चा नाउ स्टेप्स फॉर सॉल्विंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट स्टेप, find derivative of the function f prime x in factorized form। so factorized form का क्या रोल है वो हम क्वेश्चन में देखेंगे। so we should find derivative but in factorized form। second step, equate f prime x to 0। why? because अगर हम f prime x को 0 से इक्वेट करेंगे तो जो x की वैल्यूज निकल के आएंगी वो क्या निकल के आएंगे हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये कितनी भी हो सकती हैं, तो ये क्या होंगे बच्चा हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट्स। आफ्टर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स वी विल बी मेकिंग इंटरवल्स। तो इसमें आप नंबर लाइन की हेल्प ले सकते हो, ये नेसेसरी नहीं है, इट्स अप टू यू। और इसमें आप क्या कर सकते हो, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके आपको इंटरवल्स पता लग जाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन एल्जेब्रिक फॉर्म भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का भी हो सकता है। एल्जेब्रिक फॉर्म का है तो टेक नंबर लाइन, एंड अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ क्वाड्रेंट्स। राइट बच्चा, आप यहाँ पे अपना क्रिटिकल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एल्जेब्रिक क्वेश्चंस में आप हेल्प ले सकते हो, और क्वाड्रेंट की आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वेश्चंस में हेल्प ले सकते हो। ठीक है बच्चा, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, आपको इंटरवल्स मिल जाएंगे। इंटरवल्स निकालने के बाद यू हैव टू मेक अ टेबल। In this table you have to make 4 columns. First column will contain intervals, second intermediate points, third sign of f prime x, derivative का sign, and उसके according you will get your answer।
तो आपको इंटरवल्स बनाने हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट्स। इंटरमीडिएट पॉइंट्स का मतलब क्या है, कोई भी एक वैल्यू लेनी है उस इंटरवल के बीच की, एंड वहाँ पर आपको साइन चेक करना है। अगर साइन पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, एंड देन फाइनल आंसर विल बी इन वर्डिंग्स। काफ़ी बच्चे आंसर सही निकाल देते हैं लेकिन फाइनल आंसर नहीं लिखते हैं। तो बच्चे ये प्रेजेंटेशन का पार्ट है, अगर आप फाइनल आंसर नहीं लिख रहे हो तो आपके हाफ मार्क्स कट सकते हैं। तो अगर आपने बिल्कुल क्वेश्चन सही किया है तो ट्राई करो 4 में से 4, 6 में से 6, जितने मार्क्स में क्वेश्चन है उसमें से फुल मार्क्स लो, ठीक है। तो ये तो हो गए बच्चा स्टेप्स। सो बच्चा ये स्टेप्स हो गए। सो क्विक रिवीजन, क्या क्या किया आज हमने क्लास में। सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, एंड देन हमने रिजल्ट्स किए। व्हेन वी कैन से फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ डेरिवेटिव इज greater than or equal to 0, and strictly increasing if derivative is greater than 0, and strictly decreasing derivative is less than 0 and decreasing derivative is less than or equal to 0। उसके बाद ये जो स्टेप्स हैं ये हमारे काम के हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। सो व्हाट आर दीज स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप है बच्चा डेरिवेटिव निकालो फैक्टराइज फॉर्म में। सेकंड स्टेप है डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको इंटरवल्स पता लग जाएंगे, एंड उसके बाद आपको ये टेबल बनानी है जिसमें इंटरवल्स, इंटरमीडिएट पॉइंट, साइन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, एंड फाइनल आंसर शुड बी इन वर्डिंग्स, ठीक है। सो अभी बच्चा आज की क्लास हम वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ओके बच्चा, टेक केयर।